Hi everyone. So in this video, we are going to talk about the metals and non-metals, and here we are going to talk about the corrosions and its preventions. So as you all know that metals are one of the most important structure in our day-to-day life. They play a very important role, and with the metals comes a concerning thing which is their corrosion. That means they degrade themselves. सो अगर कोई भी हमारे पास आयरन का सब्सटेंस है या हमारे पास कोई और अदर मेटल्स का सब्सटेंस है तो दे समटाइम्स दे काइंड ऑफ डिग्रेड corrode. So what is corrosion and how we can prevent them? Today we're going to discuss this in this video. So see, here if I'm talking about a definition, a simple definition about the corrosion. So corrosion क्या होता है? Suppose this is a particular layer of any metal, and this layer comes in the contact with the oxygen, or I can say water, and this the uppermost layer of this thing gets reacted and it gets converted into the metallic oxide. अगर मैं एग्जांपल लूंगा सिल्वर का, तो सिल्वर जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में, तो इट विल फॉर्म AgO, which is silver oxide. Similarly, brass also reacts, copper also does reacts, iron also does react. So corrosion is basically what? It's a slow eating up of the metals, and when they react with the moisture, air, or certain chemicals. Okay. Now, as I said that कि silver जो है वो react करता है oxygen and water के presence में, like when you see the silver jewelries, तो इट टर्न्स ब्लैक विथ टाइम. सो फिर हमें उसे साफ करना पड़ता है. जब हम साफ करते हैं तो उसके अपर लेयर का जो ऑक्साइड है वो हम रिमूव करते हैं, देन इट गेट्स फाइन. कॉपर ऑल्सो इट गेट्स अ ग्रीन कोट. कॉपर भी जब रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. एंड वन ऑफ द रीजन वाई वी डोंट स्टोर पिकल्स और सम अदर थिंग्स इन कॉपर यूटेंसिल्स, बिकॉज कॉपर जो वो रिएक्ट करके अदर सब्सटेंस बनाता है विच माइट बी पॉइजनस फॉर अस इफ वी कंज्यूम देम. नेक्स्ट व्हाट इज आयरन. सो सी, आयरन, लाइक वी कैन से दैट आयरन की जो कोरोजन होती है उससे हम रस्टिंग बोलते हैं. सो we use corrosion for all the metals, but we use the term rust just for the carbon. जब carbon reacts just for the iron, I'm so sorry, जब iron react करता है water से या oxygen से, so it makes hydrate ferric oxide. So Fe2O3.xH2, and this thing only is known as the rust. So that means corrosion सबके लिए है. The term corrosion is for all the metals, but the term rusting is only and only for the iron. Now, what are the conditions for the corrosion? So conditions हमने देखा कि corrosion के लिए water required है, oxygen required है. तो एक experiment किया गया, उसमें 3 beakers लिए गए या test tubes लिए गए, और एक में हमने metal डाला विथ एयर एंड वाटर, तो कोरोजन हुआ. एक में हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर लिया, देर इज नो एयर, सो कोरोजन नहीं हुआ. सिमिलरली इन थर्ड वन वी टुक ओनली ड्राई एयर, नो वाटर, सो नो कोरोजन. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमें ये समझ में आया कि कोरोजन के लिए एयर और वाटर दोनों ही रिक्वायर्ड है. एयर में मोस्ट स्पेसिफिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन. नाउ द थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट इट. सो जो भी हमारे घर पे आयरन के रेलिंग्स होते हैं, स्टेयर्स के या गेट्स होते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं. सो अगर वी आर पेंटिंग इट, वी आर ऑयलिंग इट, वी आर ग्रीसिंग इट, सो व्हाट इज हैपनिंग, पेंट, oils and grease, they form a layer above the outermost surface of the metal. तो अगर एक लेयर बन जा रही है ऑयल की, तो ऑक्सीजन और वाटर जो वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा. फिर वन ऑफ द फेमस प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन, जो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे. देन इट इज क्रोम प्लेटिंग या एनोडाइजिंग. यू माइट हैव हर्ड दैट कि हम कभी कहीं पे जाते हैं तो पीपल से दैट दिस इज सिल्वर बट कोटेड विथ गोल्ड, राइट? एंड we say this is this metal but इस पे गोल्ड की पानी चढ़ी हुई है, समथिंग लाइक दैट. इन कॉमन लैंग्वेज we use that. So what we are doing is that we are basically taking a metal, and on that metal we are making, we are like
making another layer of metal which is going to protect that particular metal. For example, अगर मैं आयरन की बात करूं तो हम आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग लगा देते हैं. That is galvanization, right? Now, second is that we can do alloying. That means we are mixing two metals या नॉन मेटल्स भी हम मिक्स करते हैं. एक मेटल्स एक नॉन मेटल हो या दोनों मेटल हो, इससे भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम दिस these things we can prevent the corrosion. and हम अपने जो भी यूटेंसिल्स है या जो भी आर्टिकल है जो हमारे आयरन से या डिफरेंट मेटल से बना हुआ, उसकी लाइफ स्पैन को हम इंक्रीज कर सकते हैं. लेट्स क्विकली सी द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन हियर. सो एक दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द आयरन या स्टील फ्रॉम द कोरोजन. हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक की लगा देते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? जिंक जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. सो इवन अगर कोटिंग ब्रेक हो जाता है, जिंक जो है वो पहले कोरोड होगा एंड आयरन जो है वो सेफ रहेगा कोरोजन के. अब मान लो जैसे ही हमें पता चल गया कि जिंक की कोरोजन हो रही है, हम वापस से जिंक का लेयर को कर सकते हैं वापस. सो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, गैल्वेनाइज्ड बकेट्स होते हैं. ये सारी चीजों में हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं. इनफैक्ट दैट टैप्स विच वी आर यूजिंग इन आवर वॉशरूम्स, वो भी आयरन से बना हुआ है, तो उसके ऊपर जिंक की लेयर जो है वो लगा दी जाती है ताकि वो कोरोड ना हो. नेक्स्ट इज एलोइंग. Alloying क्या? Process of mixing of metal with other metals or non-metal. So what we can do is that we can mix metal plus metal or we can mix metal plus non-metal. So how is it done? दोनों मेटल को हम जनरली मेल्ट कर देते हैं. So जैसे पहले हमने क्या किया, मान लो मुझे आयरन लेना है, तो आयरन को मैं मेल्ट करूंगा. अब मैं उसमें जो भी मेटल मुझे कम अमाउंट में डालना है, मैं उसको फिर डाल दूंगा. सो बेस मेटल इज मेल्टेड फर्स्ट और अदर एलिमेंट्स आर एडेड इनटू सर्टेन प्रॉपर रेशियोज लाइक 70%, 30%, समथिंग लाइक दैट. फिर हम उसको कूल करते हैं और एक होमोजेनस सब्सटेंस, होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है, सोल्यूशन बना लेता है. पर्पस क्या होता है? स्ट्रेंथ इंक्रीज करना. जो स्टील है दैट इज एन एलॉय. corrosion resistance, stainless steel you might have heard. Then melting point को कम करना, improve appearance. So for these things we use the alloying. So this was all about the corrosions and their preventions. So I hope that you have understood this topic properly, and if in case you have any doubts anywhere, you can reach me out through my Urban Pro profile. Thank you.